नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बायकुला की हाईराइज बिल्डिंग की 42वीं मंजिल पर लगी आग। पीएम मोदी ने दिल्ली में यूरोपियन कमीशन की चीफ उर्सुला वॉन के साथ की बैठक। नीतीश कुमार का खेल खत्म कर देगी बीजेपी, बोले तेजस्वी यादव। भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर में स्कूलों की छुट्टी 7 मार्च तक बढ़ाई गई। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने जीता टॉस, ऑस्ट्रेलिया की पहले गेंदबाजी। खबर महाराष्ट्र से है, जहां शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को पुणे बलात्कार मामले पर महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम के बयान पर कहा कि उनका बयान असंवेदनशील है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि योगेश कदम ने कहा कि बलात्कार एक शांत वातावरण में हुआ और किसी को पता नहीं चल सका और पीड़िता ने प्रतिरोध नहीं किया। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। शिवाजी महाराज पुणे से, उस पुणे में इस प्रकार की घटना होती है, बार बार, एक बार नहीं बार बार होती है। तो सरकार क्या करती है? पब्लिक प्लेस पर बलात्कार हुआ और हमारे मंत्री कहते हैं, योगेश कदम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम, उनका स्टेटमेंट देखिए, आप बलात्कार होने से क्यों नहीं रोक पाए? तो बोलने बलात्कार बहुत शांततापूर्ण ढंग से हुआ, बाहर पता नहीं चला। ये उनकी भाषा है। गंभीरता देखिए कि बलात्कार बहुत ही शांततापूर्ण ढंग से हुआ है, कोई स्ट्रगल नहीं हुआ बलात्कार में। वो लड़के ने कोई स्ट्रगल नहीं किया, वो महिला जो है अबला है, उसने कोई स्ट्रगल नहीं किया। ये हमारे मंत्री की भाषा है और ऐसे मामले में उनका जो सीरियसनेस है, असंवेदनशीलता देखिए। ऐसे सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? खबर दिल्ली से है, जहां सीबीएसई ने 2026 से 10वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करने से जुड़ी एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। ड्राफ्ट पॉलिसी को सार्वजनिक मंच पर डाला जाएगा और हितधारक 9 मार्च तक अपनी राय दे सकते हैं, जिसके बाद नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। This is going to be a major advantage for students because earlier they would only appear in the exam. They would repeat the exam which they have either flunked or they have to improve their marks. But here the 2 editions are going to give them an option that, for example, if a student is appearing for 5 subjects, you can pick any 2 or any 3 in the first edition and then choose like another 2 in the next edition. So that is going to be completely a student's call. So earlier also 2 editions of exams used to happen. First was in February to March and second used to be a set of improvement exams which used to happen in June and July. That is what is going to be different now, that the whole edition of June-July exam is now going to shift to May. The first set of dates the students appear for examinations 10 board it's largely unchanged. So the student who has appeared for the first set of examinations, their mark sheet will be out. The final mark sheet will not be issued, but in the DigiLocker, the marks obtained in the first set of examinations will be released. Based on that, the students can work with the school when it comes to selecting their streams and selecting their subjects in grade 11th. Earlier, the students who are not passing in one or few particular subjects, they get an opportunity to improve not only the score for the subjects that they didn't pass, but also in the other subjects as well, because the second examination does not restrict a student to a particular subject or particular subjects to appear. They can appear for all 5 subjects, all the subjects in the second attempt as well. For schools, it is going to be an added challenge because to add to that kind of infrastructure to conduct the same kind of scale of exams twice within a short span of time
Also, the number of evaluators that CBSE had to take on board for the second edition before will now definitely increase with that. So, infrastructure wise and logistically, it is going to add up to both school and board's burden. But for students, majorly, it is going to be on the positive side only. उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के नौगढ़ थाना क्षेत्र में एक एसयूवी और ट्रक की टक्कर में एक महिला और 7 साल की बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। राजीव कुमार सिसोदिया ने घटना की पुष्टि की। सभी मृतक और घायल एसयूवी में सवार थे। उन्होंने बताया कि मृतकों में 7 साल की बच्ची भी थी। बाकी मृतक वयस्क हैं। उनकी सही उम्र और पहचान की पुष्टि की जा रही है। एसयूवी में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और नजदीकी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये टक्कर गुरुवार रात करीब 11 बजे हुई, जब एसयूवी उल्टी दिशा में आ रहे ट्रक से टकरा गई। अधिकारी ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुणे दुष्कर्म मामले पर पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि पुणे बस दुष्कर्म के आरोपी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में वास्तव में उसके शरीर पर एक निशान दिखाई देता है और पूछताछ से पता चलता है उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Last night, the accused in the Swargate bus terminal rape incident was detained from Gunat village in Shirur Taluka. The crime branch, the Zone 2 and Swargate police station teams, coupled with the riot control platoons and recruits, indulged into an extensive search operation for the last 3 days, and with the support, active support and enthusiastic support of the local villagers, we were able to detain the accused last night at around 1:10 hours. The formalities have been completed and the accused has been formally arrested in the morning hours. He shall be produced in court shortly and remand will be taken. We are trying to make a watertight case and ensure conviction in the case. We shall be having a special counsel appointed in the case, and the case shall proceed on a fast track basis. To prevent incidents like this, the Pune City Police has started a fresh safety audit of various places, including vulnerable places, dark spots, hot spots, places like the bus terminals, places outside the railway stations, which comes under our jurisdiction, and various steps have also been listed out, which shall be taken shortly, which shall be started shortly. We are also coordinating with the concerned planning agencies to try and ensure a better street lighting system in the city. A drive has also been initiated to remove the bewaras vehicles and abandoned vehicles lying on the streets of the city. We have also started a check on the Ola and the Uber cabs, whether their panic buttons are in operation stage, and an extensive search was done by the traffic branch last evening also, and this drive shall also continue. We are trying to ensure that all steps to have a safe environment for women and for the citizens of Pune is being taken, and I would like to assure everyone that Pune City Police is thoroughly committed to ensure maintenance of law and order, prevention of crime, detection of crime, and we shall leave no stones unturned. QR code based, technology based patrolling has also been intensified in these vulnerable areas to ensure that incidents like this do not recur in the future. Was the accused willing to surrender? Was the accused willing to surrender? We have no such indications that he was indeed willing to surrender, because we were trying all what was possible to ensure the arrest of the accused.
but all such efforts turned futile till last evening at 1:10 when we finally managed to arrest the accused. The last tip which came was around 10:11 that he was seen at a particular location, after which the team started chasing him. We took the help of the drone cameras and finally we were able to nab him. So there was absolutely no indication that he indeed wanted to surrender. The preliminary investigation indeed shows a ligature mark on his body, and interrogation says that he indeed attempted to commit suicide. We still have to verify those facts. पुणे का जो मामला है उसमें आरोपी को पकड़ लिया गया है। इस आरोपी की जांच की जाएगी, उसके माध्यम से इसकी जो सही स्टोरी है वो हमारे सामने निश्चित रूप से आएगी। और कुछ चीज़ें आज पुलिस कमिश्नर ने आपके सामने रखी है, कुछ चीज़ें जल्दी हम सामने रखेंगे। अभी चूँकि सारी प्रक्रिया चल रही है इसलिए वो चीज़ें सामने रखना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें फॉरेंसिक जो कुछ हमारे तफ्तीश है वो भी हमारे सामने आई हुई है, तो निश्चित रूप से इसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी और इस प्रकार के डिपो में ऐसे मिसयूज न हो, इस दृष्टि से भी आगे में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के श्री गंगानगर में लोगों से करीब 1000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने एक पिता और बेटे को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दीपक आर्य नायक और लाजपत आर्य ने सिर्फ एक खाते थे। 1000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। पिता और बेटे ने एक नकली निवेश ऐप कैपमोर FX बनाया, जिसने देश में हजारों लोगों को अपना पैसा निवेश करने के लिए आकर्षित किया। साथ ही क्रिप्टो करेंसी, खास तौर पर USDT ने उच्च रिटर्न का वादा किया। पुलिस 4 लोगों की तलाश कर रही है, जिनमें से दीपक के भाई अजय आर्य, सौरभ चावला और उनकी पत्नी प्रियंका और करमजीत सिंह शामिल है। अधिकारियों का मानना है कि वे दुबई भाग गए हैं। जो फर्स्ट लेयर है उससे ही लग रहा है कि 1000 करोड़ का तो पहले बैंक अकाउंट से ही फ्रॉड है और इससे भी कई गुना ज़्यादा फ्रॉड की सामने आने की संभावना है। इसमें मैं ये बता दूं कि जो कंप्लेनेंट है उसके खुद के साथ 4.5 करोड़ का टोटल फ्रॉड हुआ है। कर्नाटका में 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि अभी तक के एनालिसिस से केवल एक फर्स्ट लेयर में 1000 करोड़ के फ्रॉड सामने आ रहा है और उसमें ये झांसा देते थे कि आप हमारे थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करें तो हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे। शुरू में ये जो व्यक्ति इंटरेस्ट दिखाता है उसको मीटिंग के लिए या तो बुला लेते हैं या उससे ये डील करते हैं कि भाई आप 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, या तो कैश लेते हैं या किसी बैंक अकाउंट में लेते हैं। किसी कोई पर्टिकुलर ऐप या उसके थ्रू नहीं लेते हैं, सीधे कैश या बैंक अकाउंट लेते हैं और स्टार्टिंग में पैसा रिटर्न करते जाते हैं। उसके पश्चात जब व्यक्ति झांसे में आ जाता है तो उसको मोटिवेट करते हैं कि आप और भी लोगों को लाएं, और लोगों को जोड़े और पैसा इन्वेस्ट करते जाए। तो एक तरीके से शुरुआत में कुछ पैसा रिटर्न करके एक लंबे समय तक थोड़ा भरोसा जीतने के बाद बड़े अमाउंट का फ्रॉड करने का ये जो व्यक्ति है ये बात सामने आई है। पारस्परिक टैरिफ के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता अजय कुमार ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार को अमेरिका को जवाब देना चाहिए और अपने अपमान के विरोध में
खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी को अपने अमेरिकी समकक्ष और बताना चाहिए कि ऐसे कदम भारत को स्वीकार नहीं होंगे, क्योंकि टैरिफ हटाने जैसे कदम देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। ये दो राष्ट्र अध्यक्ष की कहानी है। एक तरफ मैक्रॉन फ्रांस के राष्ट्रपति किस तरह से ट्रंप को जो करेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हो। दूसरे तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सामने देश के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ओछे टिप्पणी कर रहे हैं कि इंडिया इज अ टैरिफ वायलेटर, सबसे ज्यादा टैरिफ होती है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। इस तरह के बातें मोदी जी के सामने, और मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। यही हाउडी मोदी आपको याद होगा, ह्यूस्टन में हाउडी मोदी, हाउ आर यू डूइंग मोदी, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। और भारत और अपने सामने भारत को जो है टैरिफ वायलेटर, मैक्सिमम टैरिफ तरह के बातें जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी कह रहे थे, ये मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड का जो है व्यवहार। अगर ये बेस्ट फ्रेंड तो दुश्मनी ठीक है। भाजपा के ट्रोल्स थकते नहीं है, विश्वगुरु बोलते रहते हैं। मोदी जी वापस आए, और जैसे ही वापस आए थे तो अमेरिका ने अनाउंस किया कि F-16 का $356 मिलियन, $356 मिलियन, 3,000 करोड़ के आसपास के जो है स्पेयर पार्ट जो है F-16 के मेंटेनेंस के लिए वो दिया जा रहा है पाकिस्तान को। कोई शब्द नहीं है विदेश मंत्रालय से। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुई थी उसमें यह लिखा गया था कि सीधे तौर से ये F-16 आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल होगी, और यदि आप उसको जो है आपने जो है अपने पड़ोसी देश के खिलाफ इस्तेमाल किया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इस देश के वायु सेना के पदाधिकारी ने लगातार कहा है 2019 में F-16 को पाकिस्तान ने जो है भारत पर हमला करने के लिए, अपने डिफेंस इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। उस पर कोई टिप्पणी नहीं। हम एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं अमेरिका को कि आप गलत कर रहे हो। 2022 में बाइडेन ने $450 मिलियन के आसपास F-16 के मेंटेनेंस के लिए दिया था। अब यह स्थिति है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह से अमेरिका पूरी तरह से मदद पहुंचा रहे हैं, और हमारी सरकार के पास बस हिम्मत ही नहीं है बोलने के लिए। सेना के वरिष्ठ जनरल से और लोग से बात करके और रक्षा विशेषज्ञ से बात करके बताएंगे कि हमको F-35 चाहिए कि नहीं चाहिए, हमने बात ही नहीं की। और F-35 इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा। F-35 इस देश के हित में नहीं है। लगातार रिपोर्ट्स आए हैं इसके बारे में। आपने देखा होगा कि टैरिफ के बारे में किस तरह से ट्रंप साहब जो है भारत को नीचे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और ये सरकार इतनी डरी हुई है, बेशरम सरकार है कि मोदी जी का जाने से पहले उन्होंने हार्ली डेविडसन का 50% टैक्स कम कर दिया था, कस्टम्स ड्यूटी, और टेस्ला का 85%। एंड प्लीज रिमेंबर टू ऑल ऑफ यू, जिस दिन अमेरिका के टैरिफ हम हटाएंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, जिस दिन, और वो होगा क्योंकि रेसिप्रोकल है और ये सरकार करेगी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा मोदी सरकार से पूछिए, जिस दिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सेब, जिस दिन एप्पल पर आपने टैरिफ हटाया पूरा हिमाचल खत्म, जिस दिन आपने ग्रेप्स पर टैरिफ हटा दिया पूरा आंध्र प्रदेश खत्म, महाराष्ट्र खत्म, जिस दिन दूध पर आपने टैरिफ हटा दिया होल मिल्क इंडस्ट्री खत्म, अमेरिका विल डंप। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।